काफ़ी सालों से। रेस 3 के पहले से? उसके बहुत पहले से है, मतलब वी नॉन ईच अदर काफ़ी टाइम पहले। मेरी पहली इंटरेक्शन हुई थी शो स्क्रीन वीडियो कॉन अवार्ड्स, स्क्रीन वीडियो मैं कॉन वहाँ पे छोटा सा कुछ काम कर रहा आपको नचाना चाहते थे? नहीं, और उस अवार्ड शो में आपको नचाना हाँ चाहते थे? वही ना, एक्चुअली पापा को अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे थे एंड ये चाह रहे थे कि मैं उनके गानों पर डांस करूँ, और मैं कभी स्टेज शोज इतने किए नहीं थे तो मैं बहुत नर्वस था, तो इसने मुझे कन्विंस किया और मैं कन्विंस हो गया और जब किया तो मज़ा आया कि मैंने किया, और इट वाज अ स्पेशल मोमेंट, पापा को अवार्ड मिल रहा था, तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो निखिल एंड it was one of his finest stage performances. It was anyone's finest stage performances. बहुत अच्छा काम किया। मैं एक सवाल somebody asked a question that from whose, I think you did, from whose point of view it is not about whether we believe a man or we believe a woman. I think that's secondary. What we should believe first is in justice. Justice for all. It cannot be, justice cannot be specific to gender. That's what our constitution says. That's the basis on which our democracy stands. That अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको जस्टिस मिलनी चाहिए, और आपके बगल में वो जो साहब बैठे हैं अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको भी जस्टिस मिलनी चाहिए। और सवाल के लिए So is this a mirror to the youth, like the persons who are following this trend for portraying cool in the society? So is this culture grow apart from your point of view? फिर से आप बोलेंगे एक बार? Like is this a mirror to the youth who are following these trends, like for being cool in the society, like daily hookups and all? अब देखिए, वक्त बदलते वक्त के साथ अब आपकी जनरेशन इसको बेहतर, जब आपके सामने तो मैं थोड़ा बूढ़ा महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो सी विद एवरी पासिंग डिकेड एंड जनरेशन द कल्चर ऑफ हाउ इंटरेक्शन बिटवीन अ मेल और अ फीमेल हैपेंस विल चेंज। वो देखना आपको है कि वो भाई सही है कि गलत है, बस किसी इट शुड नॉट गेट इनटू अ रेल्म ऑफ क्राइम, और कहीं आप अटक ना जाओ, इसलिए ये फिल्म बनी है। But like होशियार जो रहना। समाज के साथ हुआ, like वो कुछ ज़्यादा ही था I guess, क्योंकि लेकिन वो सही भी नहीं था उसने जो किया। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? ये आपका नजरिया होगा कि अगर आपको लगता है उसने सही नहीं किया तो वो आपका नजरिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये लगेगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया, जिस हिसाब से उनको सजा मिल रही है। Hello Bobby sir, hello Nikhil sir. My name is Mukta, and firstly I would like to say that your character, your work was insane, and I liked it so much. So my question to you sir is, one dialogue in the movie that really stuck with me. Sometimes I feel like I'm a good person, and sometimes I'm the most bad and disgusting person. So how did you come up with such a relatable idea, and what actually inspired you? Like it was some real life experience or any observations? नहीं, डायलॉग मुझे दिए गए थे और आई विल जस्ट फील देम एंड से मेरी खुद की So लाइफ it was very relatable, I think. आई थिंक क्या है कि हम सब we all human beings we have a lot of faults in us, you know, and we always fight to be a good person. So sometimes when you come to a moment in life when you're kind of giving up, you start fighting with the bad in you because that starts coming out more. And when things are okay with you, you try to be good. But I think a human being needs to always be good, no matter what circumstances are. So that's a doubt that every individual has, you know, because when you interact with people in a day, sometimes you feel, oh, I shouldn't have spoken like this. And sometimes you feel the other person who spoke to me shouldn't have spoken to me like this. So all that is a conflict that you go through. So you sometimes feel that I'm a nice person, sometimes I think I'm a really evil person, you know. Thank you. किसी की अनपब्लिश्ड किताब पढ़ी थी, और बहुत सारे अखबार और न्यूज़पेपर्स की जो आपकी हेडलाइंस और सुर्खियाँ होती हैं वहाँ से ये कई लोगों की कहानी है। और फिर मैं राइटर सुदीप शर्मा और अभिषेक बानी जी के पास गया और मैंने उनको कहा कि इस पर कहानी लिखी, जो उन्होंने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी। मैं अनुराग कश्यप के साथ
कोई और फिल्म कर रहा था जिसकी वो कहानी लिख रहे थे, और उन्होंने बोला, मैंने उनको ये बोला कि मैंने एक बहुत अच्छी कहानी मेरे राइटर्स ने लिखी है, ये सब मुझे भेजो पढ़ने के लिए। और उन्होंने पढ़ा और फ़ोन किया और बोला ये फिल्म मैं ही डायरेक्ट करूँगा, किसी कोई और कर ही नहीं सकता, मैं करने नहीं दूँगा। So that's how he came directed. Hello everyone. So I'm Aditi, and my question to you is, so my question is basically for both of you. Do you think audience should empathize with your character or judge him or both? Like, what is your point of view? See that we made this project and we left it to the audiences to feel that. That's what the story is all about, to make you all think about something of this kind of a situation in somebody's life and how it would be, how people should be in life, and how it's just talking to you about the morals of a character. So that's what it is. See, one of the things that we believe that art should do, of course it should entertain, but it should also it should also create a discussion. And sometimes art should disturb you. So if it has disturbed a few people, see, I would be worried if everyone agreed, because that means we haven't done our job there. If you all go back and start arguing and discussing and debating, maybe we have done something right. ये जेल की जो छोटी छोटी चीजें थी, ये ऐसा होता है, इसका ये मतलब होता है, यहाँ पे तो 5000 मत बता, 1000 बता, ये सारी तैयारी किसकी थी? ये राइटर्स ने लिखा नहीं, राइटर और डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर की टीम में रिसर्च उनकी होती है, और बहुत अच्छी रिसर्च की। हमारे आर्ट डायरेक्टर बहुत ही कमाल के थे, प्रशांत बिटकर, जिन्होंने 12th फेल का पूरा आर्ट और सेट चांदनी चौक लगाई थी सेट पे, और इतना अच्छा लगाया था। तो ये जेल का भी सेट उन्होंने क्रिएट किया, बट हमने किसी एक जेल से प्रेरणा ली, लेकिन वो जेल की, जब वो जेल वाले आए तो वो समझ नहीं पाए कि ये उनका जेल है कि ये सेट है। एक एक चीज़ उन्होंने इतनी अच्छी बनाई। आपसे मेरा सवाल है, राजवी शेट्टी के साथ काम करने का कैसा रहा आपको एक्सपीरियंस? बहुत ही उम्दा एक्टर है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। वो होने नहीं वाले थे इस फिल्म में, लेकिन उन्होंने एक बार अनुराग को फ़ोन किया कि बोला आप फिल्म बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं हूँ? तो बोला हमारे पास कैरेक्टर भी नहीं है इसमें और टाइम भी नहीं है। बोला मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ भी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पे कर लूँगा। जो फिल्म है उस पर आधारित है, इसमें जो सच्चाई है उसको दिखाया गया है। तो सर मेरा मतलब आपसे, मतलब आपके अनुसार और आपके अनुभव के अनुसार से सर, कानूनी व्यवस्था हमारे देश की ऐसी है कि जो अपराधी नहीं है उसको भी उस परिस्थिति के अनुसार रखा जाता है। जो अपराध है वो झेल रहा है अपराध, जो परिस्थिति वह व्यक्ति भी वही परिस्थिति को झेल रहा है जो अपराध नहीं किया है। तो सर आपके अनुसार हमारे देश के कानूनी व्यवस्था में क्या ऐड ऑन करना चाहिए कि जो अपराध है उसको अपराधी सच में घोषित किया जाना चाहिए? इसका उत्तर मैं दे दूं? यस सर, आप भी दे सकते। तो मैं बताता हूँ, इसी पे तो ये फिल्म बनाई गई है। सिस्टम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जो हमें सुधारनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी भी न्याय का सबसे पहले जो एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ सेज कि जब तक आप यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो जब तक प्रूफ नहीं होता गिल्ट का, आपको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। उसका विपरीत हो रहा है। आप समाज आपको अपराधी घोषित कर देता है, आपका मीडिया आपको अपराधी घोषित कर देता है, हमारे आसपास के लोग हमको अपराधी घोषित कर देते हैं। उसी मुद्दे पर तो ये फिल्म बनाई गई। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये बदलना होगा। आप लोग ही हैं, हमारे युवा कल के सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो ये बदल सकते हैं। आप ही मुहिम छेड़िए। हमारा काम था सिर्फ आर्टिस्ट लोगों का काम होता है आर्ट पैदा करना, वो हमने कर दिया। अब आप जंग छेड़िए। सर आपके अनुसार सर आप निखिल ने जो कहा वही मैं कहना चाहूँगा। यह सर फिल्म समाज को बहुत बड़ा दर्पण प्रदान करने का कार्य किया। थैंक यू, वही हमारा प्रयास था। थैंक यू।